اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں پروجیکٹ آر کے بارے میں۔ ہیلو دوستوں، 11 مارچ 2011 کو جاپان میں آنے والے سمندری طوفانوں اور زلزلوں کی وجہ سے جاپان کی اکانومی تقریباً تباہ ہو گئی تھی اور لاکھوں لوگوں کی قدرتی آفت میں جان چلی بھی گئی۔ ایک معروف ٹی وی رپورٹر کے مطابق یہ وہ وقت تھا جب جاپان امریکی ڈالر کو انٹرنیشنل کرنسی سے ہٹا کر ایک نئی کرنسی سامنے لانا چاہتا تھا، جس مقصد کے لیے جاپان کے صدر نے چین کی انتریم دورے بھی کیے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایشیا کے ممالک امریکی کی کرنسی ڈالر کے خلاف اکٹھے ہو رہے تھے، جس کی بدولت امریکہ کی اکانومی تباہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ یعنی امریکہ کی اکانومی کو تباہ کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ اس کی کرنسی یعنی جو ڈالر ہے اس کو انٹرنیشنل کرنسی سے ہٹا دیا جائے، اور اس کام میں جاپان بڑھ چڑھ کر مصروف تھا۔ لہٰذا امریکہ نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے جاپان کو ایک خفیہ پیغام جاری کروایا کہ یہ اپنی معیشت کو ہماری پالیسیوں کے حوالے کر دے، ورنہ ہم تم پر سمندری طوفانوں اور زلزلوں سے حملہ کر دیں گے۔ دوستوں، ظاہر ہے جاپان کو بھی یہ دھمکی ہی محسوس ہوئی اور انہوں نے بھی سوچا کہ کس طرح بھلا سمندری طوفان اور زلزلوں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ سب تو قدرتی نظام ہے، اسے کوئی انسان کنٹرول نہیں کر سکا۔ مگر 11 مارچ 2011 کو دنیا نے دیکھا کہ سمندر کی بڑی بڑی سونامی کی لہریں جاپان کے شہروں پر ٹوٹ پڑی، ان کی زمین زلزلوں سے اور آفٹر شاک کی لہروں سے اٹھی اور جاپان کی اکانومی کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ اب دوستوں، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہوا؟ کیا واقعی قدرتی موسموں جیسے سمندری طوفانوں اور زمین کے زلزلوں کو انسان کنٹرول کر سکتا ہے؟ اور اگر ہاں تو ایسا کیسے ممکن ہے، اور اس کے پیچھے چھپے خفیہ مقصد آخر کیا ہے؟ یہ سب باتیں جانیں گے آج کی ہماری اس ویڈیو میں۔ دوستوں، امریکی کے الاسکا سے 200 میل کے فاصلے پر جاکانا نامی جگہ پر دنیا کا سب سے بڑا ریڈیو براڈ کاسٹنگ سسٹم بنایا گیا ہے، جو کہ دنیا کا سب سے پراسرار ریڈیو براڈ کاسٹنگ سسٹم ہے، جسے پروگرام نشر کرنے کے لیے نہیں بلکہ 1993 میں نبی کریم کے پیدا کردہ قدرتی موسموں کو کنٹرول حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس پروجیکٹ کو ہارپ نام دیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے ہائی فریکوینسی آرورل ریسرچ پروگرام۔ یہ پروجیکٹ یو ایس ایئر فورس، یو ایس نیوی، یونیورسٹی آف الاسکا اینڈ ڈیفنس ایڈوانس ریسرچ پروگرام ایجنسی یعنی ڈارپا نے فنڈ کیا ہے۔ جہاں یہ پروجیکٹ موجود ہے وہاں پہلے یو ایس ایئر فورس موجود تھی، اور اب یہاں 180 بڑے بڑے اینٹیناز موجود ہیں جو کہ 72 فٹ اونچی ہیں، اور انہیں آپس میں ایسے جوڑ دیا گیا ہے کہ یہ ایک بڑے اینٹینا کا کام سر انجام دیتے ہیں اور فضاؤں میں ٹن کے حساب سے انرجی فل ویو کی صورت میں بھیجتے ہیں۔ دوستوں، ہارپ کے ذریعے 36 ملین واٹ ہائی فریکوینسی ویو کو فضا میں بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ انرجی اتنی زیادہ ہے جتنی 72,000 ریڈیو اسٹیشن کا ٹوٹل انرجی ہو سکتی ہے اگر وہ مل کر ایک ساتھ کام کریں، یعنی کہ 36 لاکھ واٹ کی انرجی فضا میں ایک ساتھ اور ہارپ پروجیکٹ کی مدد سے بھیجی جاتی ہے۔ اس کا ٹارگٹ فضاؤں میں موجود ایک خاص جگہ یعنی آئونوسفیئر ہوتی ہے۔ امریکن ملٹری کے مطابق ہارپ کو آئونوسفیئر کے بیہیویئر اور اس سے کیا کیا کر سکتے ہیں کو اسٹڈی کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، مگر حقیقت ہارپ فضاؤں میں اتنی زیادہ انرجی بھیج کر اسے گرم کرتا جا رہا ہے جو کہ موسم میں تبدیلی کا باعث بن رہا ہے۔ دوستوں، در حقیقت اس پروجیکٹ کو قدرتی موسموں کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ انسان خدا تعالیٰ کے بنائے ہوئے قدرتی نظام پر کنٹرول حاصل کر سکے، اسے اپنے مقصد کے لیے بطور ہتھیار استعمال کر سکے، جہاں چاہے بارش برسا سکے اور جہاں چاہے طوفان اور زلزلوں کی بارش کر دے، حتیٰ کہ پتھروں کی بھی بارش کر دے، جہاں چاہے ٹیمپریچر بڑھا دے اور جہاں چاہے ٹیمپریچر جما دے۔ دوستوں، اس کو بنانے کے پیچھے آخر کیا چھپے راز ہو سکے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک حدیث پر غور کرنا ہوگا۔ اس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دجال کے حکم پر بارشیں نازل ہوں گی، وہ زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزیاں اگائے گی، وہ قحط ڈالنے پر بھی قادر ہوگا، زمین اس کے حکم پر اپنے خزانے باہر نکال دے گی۔ دوستوں، اگر ہم اس حدیث مبارکہ پر غور کریں تو دجالی نظام کا ایک خصوصیت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ سبز اگانے اور قحط دینے میں قادر ہوگا، اسی کے حکم بارشیں برسیں گی اور خشک سالی ہوگی۔ غرض یہ ہے کہ وہ خدائی موسم پر قدرت رکھے گا اور اسی بدولت وہ لوگوں کو گمراہی کی اور ڈھکلے گا۔ لہٰذا دوستوں، یہ صاف ہو جاتا ہے کہ یہ ہارپ نام کا پروجیکٹ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جسے عالیہ خفی طاقتوں کی جانب سے دجالی
वाली निजामी राह को वार करने के लिए बनाया गया है और यह काफी हद तक कामयाब भी हो गए हैं। और अब सवाल ये आता है कि हार काम कैसे करता है। दोस्तों, जमीन से 80,000 किलोमीटर दूरी पर एक लेयर मौजूद है, उसे आयोनोस्फीयर कहते हैं, जो कि हमारी जमीन के गिर्द कुतुबैन पर असर अंदाज होती है और इसी के बदौलत मौसम जन्म लेते हैं। अगर इस लेयर से कुछ गड़बड़ कर दी जाए तो जमीन पर मौसम में बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, एटमॉस्फेयर में 6 लेयर हैं, उनको आयोनोस्फीयर की लेयर कंट्रोल करती है। अगर इस लेयर की प्रोजेक्शन मौजूद ना हो तो हमारी जमीन कुछ सेकंड में जलकर खाक हो जाएगी। लिहाजा इस लेयर का इल्म होने पर अमेरिकी साइंटिस्टों ने इसे कंट्रोल करने के लिए हार्प जैसा मंसूबा बनाया, जिसके जरिए 3.5 मिलियन हाई फ्रिक्वेंसी लेयरों को आयोनोस्फीयर लेयर तक भेजा गया और इनसे टकराने से आयोनोस्फीयर के तह में छेड़छाड़ शुरू कर दी, जिसकी बदौलत अमेरिकी साइंटिस्टों ने एक हद तक कुदरती फिजा को एक हद तक कंट्रोल करने में कामयाब हो गए और इसी की बदौलत शदीद मौसमी चेंजेस को देखा गया। यानी किसी इलाकों में सर्दी लेट आना शुरू हो गई, जबकि गर्मियों का मौसम तवील होना शुरू हो गया और सर्दियों से जमे हुए ग्लेशियर पिघलना शुरू हो गए, जिसकी बदौलत समुद्र की सतह बढ़ गई। लिहाजा सैलाब और सुनामी जन्म ले रहे हैं, जबकि जमीन की तह भी टूट का शिकार हो रही है। दोस्तों, जब अमेरिकी अवाम को इन मौसमी ताजीरात का शऊर आया तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट के खिलाफ एतराज किया। इसके नतीजे में मजबूरन 2013 में हार्प नामी इस प्रोजेक्ट को ऐलानी तौर पर बंद कर दिया, मगर दर हकीकत इस बात को अक्ल तस्लीम नहीं करती कि अमेरिकी हुकूमत अपनी ही गुलाम अमेरिकियों के कहने पर इतना अहम प्रोजेक्ट और इतना अहम हथियार कैसे बंद कर सकती है, जबकि हकीकत इससे खुफिया तरीके से और दुनिया की नजरों से ओझल करके अभी भी इस पर जोर शोर से काम जारी है, क्योंकि यह वही टेक्नोलॉजी है जो दज्जाली सल्तनत का एक बहुत ही अहम हथियार होगा, जिसकी बदौलत मौसमों पर कब्जा मुमकिन होगा। दोस्तों, रब्बे करीम ने हम इंसानों की मदद के लिए जमीन के गिर्द एक लेयर जिसे वैन रेडिएशन एलन बेल्ट कहते हैं उसको भी बनाया है, जिसका मकसद जमीन पर गिरने वाले करंट और खतरनाक लहरों को जज्ब करना है और जेरे जमीन प्लाटो को तोड़फोड़ से बचाना है। अगर इस कुदरती तह में कुछ गड़बड़ हो तो शदीद जलजले जन्म ले सकते हैं और इसी तह का कंट्रोल भी कुदरती तौर पर आयोनोस्फीयर से होता है, क्योंकि आयोनोस्फीयर अपनी मकानाती ताकत से वैन एलन बेल्ट को जकड़े रखी है, जिससे आसमानी बिजली और दूसरी खतरनाक हवाएं जमीन पर नहीं पहुंच पाती। जेरे जमीन लावा भी कंट्रोल में रहते हैं, जबकि हार्प के जरिए हाई फ्रिक्वेंसी लहरें फिजा में भेजी जाती हैं तो उसे शदीद गर्म कर देती हैं। लिहाजा वैन रेडिएशन एलन बेल्ट की पकड़ आयोनोस्फीयर की तह पर कम हो जाती है और इसके बाद सिग्नल भेजकर इसमें चेंजेस कर सकते हैं, जो कि मौसमी कंट्रोल और जलजलों का बाइस बनता है। जबकि समुद्री लहरों को कंट्रोल करने के लिए हार्प चांद की कशिशी लहरों का इस्तेमाल करता है, क्योंकि समंदर में मौजूद लहरों का निजाम चांद की मैग्नेटिक लहरों पर मुमकिन होता है। यह पानी में दाखिल होकर बड़ी लहरें बनती हैं और फिर सुनामी बन सकती हैं। खुसूसन 7 और 21 तारीख को चांद की कशिशी लहरें बहुत ज्यादा होती हैं, जिसके बदौलत समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें वहीं उड़ती रहती हैं। लिहाजा इस खुसूसियात को देखते हुए चांद की कशिशी लहरों में मजीद इलेक्ट्रॉन्स दाखिल करके इन्हें मजीद शदीद किया जाता है, जिससे समुद्र की लहरें 500 फीट तक करके किसी भी शहर की तरफ मोड़ा जा सकता है। इसी तरह सूरज की आने वाली रोशनी में भी शदीद गर्मी और अल्ट्रा वायलेट रेज मौजूद होती हैं, जिन्हें कुदरती तह मेसोस्फीयर साफ करके 1000 डिग्री सेंटीग्रेड हरारत को कम करके महज 30 या किसी जगह पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम कर देती है, जो कि हम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इसे महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह का कंट्रोल भी आयोनोस्फीयर के पास है। लिहाजा हार्प के जरिए आयोनोस्फीयर को खिसका कर मेसोस्फीयर में तब्दीलियात लाए जाते हैं, जिसकी बदौलत बहुत ज्यादा गर्मी और झुलसा देने वाली खुश्क साली लाई जा सकती है। इसी तरह एक और कुदरती तह बारिशों और हवाओं के निजाम को कंट्रोल करती है, जिसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं और इसे भी आयोनोस्फीयर की मदद से तब्दीलात दिलवाई जाती है। इससे तूफानी बारिशें जन्म लेती हैं। दोस्तों, इन सब बातों से यकीनन आपको आयोनोस्फीयर नामी कुदरती फिजाई तह की अहमियत का अंदाजा हो गया होगा कि खुदा ताला की बनाई हुई कुदरती रहमतें कम नहीं हैं, क्योंकि इसकी बदौलत स्पेस में मौजूद चट्टान और पत्थर जमीन की तरफ नहीं आ सकते और यह करीब आने पर जला देती है।
के अलावा यह तह हमारी आवाज के लेवल को भी बढ़ाती है। अगर यह तह न हो तो आपकी आवाज इतनी कम हो जाए कि खुद आपको अपनी आवाज ना सुन पाए। इसके अलावा सैटेलाइट भी इसी तह में काम करते हैं। दोस्तों, अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि यह किस निजाम की तैयारी की जा रही है। यह दज्जाली निजाम की तैयारी नहीं है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया था कि लोग, जब तुम दज्जाल की आमद की खबर सुनो तो कोशिश करना कि तुम्हारा और उसका सामना ना हो। इस हदीस का माफून यकीनन यह है कि जब तक ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी का ज़हूर ना हो, हमें इस दज्जाल फितने से दूर रहना होगा। क्योंकि अगर हम खुद पर यकीन करके कि हमारा ईमान बहुत ज्यादा मजबूत है, हम तो तजास्सुस के तौर पर इस दज्जाली फितने को जानने की कोशिश करेंगे, तो यह दज्जाली फितना पहली नजर में ही हमें गुमराह करके रख देगा। दोस्तों, इस वक्त दुनिया में इस एजेंडे पर इल्लुमिनाटी नामी खुफिया तंजीम मौजूद है, जो कि शैतान के पैरोकार हैं और इसका मकसद पूरी दुनिया में एक हुकूमत कायम करना है, यानी कि वन वर्ल्ड ऑर्डर। और इस मकसद के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं और इन्हें लगता है कि वह अपनी एक आंख की मदद से सब देख रहे हैं। यह आंख दोस्तों दरअसल दज्जाल की ही आंख है। इन शैतानी पैरोकारों से लड़ने के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल पर नजर डालेंगे तो वह पिघलने लगेगा। इसके अलावा जब दज्जाल की फौज शिकस्त खाकर भागेगी तो हर दरख्त अपने पीछे छुपे हुए दज्जाली फौजी को जाहिर करेगा। दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि दज्जाली फौज की लाख टेक्नोलॉजी के बावजूद रब्बे करीम अपने हक पर कायम रहने वाले सिपाहियों की भी मदद करेगा। यकीनन दोस्तों, यह इंसान की मुश्किल तरीन इम्तिहान होगा और यह दज्जाली फितना मुनाफिकीन, मुशरिकीन और हक पर कायम रहने वालों को अलग अलग कर देगा। दोस्तों, हमें जरूरत है इस बात की कि हम ज्यादा से ज्यादा हक को फैलाने की कोशिश करें और जितना हो सके आगे फैलाने में अपना किरदार अदा करें। इस शैतानी हथकंडों को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज करें और इस दज्जाली फितने से पनाह मांगे। रब्बे करीम की जात पर मुकम्मल भरोसा रखें कि वह हर सूरत अपने बंदों की गैबी मदद फरमाएगा और इस बदतरीन दज्जाली फितनों से पनाह मांगे। खुदा हम सब पर अपना रहम और करम फरमाए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।